Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today I'm going to discuss with you the theoretical aspects of the financial statements, chapter 8. And this is part A of the financial statements, which means financial statement has been covered in two chapters or in two parts. One would be a basic part and the other one would be a bit detailed. So this is learning objectives, explain the advantages and disadvantages of operating as a sole trader, explain the importance of preparing income statement. I will not discuss all the learning objectives and all the topics. I will be discussing with you the some important topics. Other ones you will learn by yourself. So the most important of the topic is introduction to the financial statements. So I will straight away come to the financial statements. Although there are four major financial statements which are to be learned by an accounting student in your professional examinations like CA, CIMA, ACCA, ICAEW, etc. If you are talking about UK, and here in Pakistan there is ICMA, Pakistan and ICAP. These are some good professional qualifications providers. And according to the professional qualifications, professional bodies, international standards, international financial reporting standards, and the practice going on all over the world, there are four financial statements. First one is income statement, then is statement of owner's equity, then is statement of financial position, and the statement of cash flows. I'm not here talking about the specific names. For example, International Financial Reporting Standards currently calls income statement as statement of profit or loss and other comprehensive income. We will be taking a simplistic review, simplistic view of the names, simple names of the financial statement. So I am here taking the name of the statement of profit or loss and other comprehensive income as income statement. So come on to our topic, income statement. Here in your course, in your O-level course, you are only currently understanding two statements. The one is income statement, the other one is statement of financial position. So we will be sticking to our framework, our course. So income statement. First of all, you may see so here you can see an income statement. This is the first financial statement, which consists of two sections. Number one is trading section, in which the gross profit of the business is calculated. What is gross profit? We will be discussing in more detail in the next few minutes. And second section is a profit and loss section, in which the profit for the year is calculated. Profit for the year means net profit. This is gross profit, and final profit or net profit is calculated at the end of the profit and loss section. The trading section and the profit and loss section of the income statement are part of the double entry system. इसको ये कह रहे हैं कि इसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई होता है. अगर आप लोग मेरी डेबिट एंड क्रेडिट के बारे में वीडियोस देखना चाह रहे हैं तो वो आप जो है मेरे फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं. सो ट्रेडिंग सेक्शन जो है उसके अंदर डबल एंट्री सिस्टम अप्लाई होता है, यानी कि डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स अप्लाई होता है, यानी इसके अंदर हम इसको लेजर्स को देखेंगे. एक चीज़ बहुत वाज़ेह तौर पर बताता चलूँ कि इसके अंदर नाम में इनकम स्टेटमेंट इन्होंने लिख दिया है. नाम में इनकम स्टेटमेंट भी चल सकता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी चल सकता है, एज़ फार एज़ वी आर टेकिंग दी लेजर अकाउंट सिस्टम. ओके, तो लेकिन अब चूँकि इनकम स्टेटमेंट का वर्ड यूज़ हो रहा है, लिहाजा हम इसको इनकम स्टेटमेंट के वर्ड को ही चलाएंगे, वेदर वी आर डूइंग अकाउंट सिस्टम और वी आर डूइंग स्टेटमेंट फॉर्म सिस्टम. सो हमारी इनकम स्टेटमेंट जो है वो अकाउंट सिस्टम के मुताबिक भी बनेगी एंड जो है वो स्टेटमेंट फॉर्म में भी बनेगी. सेकेंड स्टेटमेंट जो कि इधर डिस्कस की गई है, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन शोज द एसेट्स एंड लायबिलिटीज ऑफ द बिजनेस एट अ सर्टेन डेट. द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इज़ नॉट पार्ट ऑफ द डबल एंट्री सिस्टम. इसको हम एंड पे डिटेल के साथ देखेंगे. इसके अंदर जो है वो
कुछ बातें और भी हैं। अच्छा, मैंने आपके साथ शेयर किया कि देयर आर 4 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। सो नंबर 1 इज़ इनकम स्टेटमेंट, सेकंड वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी, एंड थर्ड वन इज़ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। याद रहे कि ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है इसके अंदर ही स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी आ जाती है। स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी इज़ द पार्ट of the statement of financial position. So if you are preparing or you are making statement of financial position, you are automatically preparing the statement of owner's equity. So whenever there is written statement of financial position, it is understood that you have to prepare statement of owner's equity, and if you do not prepare statement of owner's equity, your statement of financial position is not perfect. Although here it is not written, but it is understood that you have to prepare the statement of owner's equity before preparation of statement of financial position, whether statement of owner's equity as a part of the statement of financial position or it is prepared separately. There are some points which are very important which are written here, और इसको जो है ये जैसे बाद स्टूडेंट्स जो हैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स होते हैं, रूल ऑफ थंब होते हैं, इनको याद रख लेते हैं, तो इसलिए हम इनको पॉइंट्स को भी साथ ही देख लेते हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, द वर्ड इज़ यूज्ड यूजुअली, इट इज़ नॉर्मली we can say that it is always prepared from a trial balance. Why it is usually written, this may be a synonym word for always, I can't say, but ये है कि कुछ अदर सर्कमस्टांसेस भी होते हैं जिसके अंदर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स किसी और तरीके से भी प्रिपेयर कर ली जाती है, लेकिन जो प्रैक्टिस है वो यही है कि ट्रायल बैलेंस से ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर की जाती हैं। लेकिन ये है कि समटाइम्स हम कुछ और ज़राए से भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर कर लेते हैं, लिहाजा यहाँ पे ऑथर ने यूजुअली का वर्ड यूज़ किया है और इट्स ओके। अच्छा, एवरी आइटम इन अ ट्रायल बैलेंस अपीयर्स वंस इन अ सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये इस किस्म की चीज़ें हैं कि ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत फायदेमंद। Whenever you are given a trial balance, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जब आपको दिया जाता है, याद रहे उसके अंदर आपने कुछ एडजस्टमेंट्स करनी होती हैं, ठीक है, और उन एडजस्टमेंट्स करने के बाद एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस बन जाता है। ये डिटेल्स आप मेरे जो है वो यूट्यूब चैनल की दूसरी वीडियोस में डिटेल के साथ देख सकते हैं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के प्लेलिस्ट में जाके। तो कोई भी ट्रायल बैलेंस हो उसमें एक आइटम एक जगह पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। इसकी जो है ज़ाहिर है इस वक्त हम इसको थ्योरेटिकली देख रहे हैं, जिस वक्त हम इसको प्रैक्टिकली देखेंगे ट्रायल बैलेंस हमारे सामने होगा, हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे होंगे, इसको मैं आपके साथ डिस्कस कर लूँगा। तो ट्रायल बैलेंस का हर आइटम एक मरतबा अपीयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर। दूसरी बात इसके अंदर आ जाती है कि अच्छा जी, तो फिर इसके अलावा कोई और चीज़ें भी हैं जो कि एक से ज़्यादा मरतबा अपीयर हो सकती हैं। यस, तो ट्रायल बैलेंस के एंड पे, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के एंड पे यहाँ पे इन्होंने सिर्फ ट्रायल बैलेंस लिखा है। सो इट शुड बी मेड क्लियर दैट इट इज़ अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। अनएडजस्टेड सो अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस जो है उसके एंड पे उसके साथ यू फाइंड नोट्स अकम्पनिंग एन अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस अबाउट वेरियस एडजस्टमेंट्स विच आर टू बी मेड. These are explained in the following chapters. Obviously, any notes to a trial balance are usually used twice in a set of financial statements. तो ये जैसे कि आपका एक बहुत बेसिक सा कोर्स है, सो इस वक्त जैसे बेसिक कोर्स में एक आसान तरीके से जैसे स्टूडेंट्स को बातें बता दी जाती हैं, ये उस लेवल पे बात है कि ट्रायल बैलेंस, अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस के नीचे गिवन जो नोट्स टू द अकाउंट्स होते हैं, जिसको एडजस्टमेंट्स कहते हैं, जिसको एडजस्टिंग इन्फॉर्मेशन कहते हैं, जिसको नॉर्मली एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी कहा जा सकता है। नॉर्मली अकाउंटेंट्स को वो इन्फॉर्मेशन वो उसको रिप्रोड्यूस करते हैं, प्रैक्टिकली वो चीज़ें खुद जो है वो देखना पड़ती है अकाउंटेंट्स को, बट if you are in an examination scenario, you are provided those information in shape of additional information or in shape of adjustments data or notes underlying the unadjusted trial balance. तो आज ये जो additional information होती है जो कि notes की शक्ल में होती है, you will find notes, ठीक है,
तो ये एडजस्टमेंट से रिलेटेड जो नोट्स होते हैं, दीज नोट्स अपीयर ट्वाइस इन ए सेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इसकी क्या लॉजिक है, ये बिल्कुल एक सिंपल लेवल पे मैंने बात की है, तो ट्वाइस क्यों होगी ये आप लोगों को जिस वक्त हम उस टॉपिक में आएंगे तो मैं आपको बताऊँगा। ये टिप में वही बताया गया है कि ट्रायल बैलेंस आइटम जो है सिर्फ एक मरतबा अपीयर होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, और जो नोट्स होते हैं एडजस्टिंग एंट्रीज के जो नोट्स होते हैं वो 2 टाइम्स अपीयर होते हैं। ये आप नोट याद रखिएगा। लेट्स मूव ऑन टू आवर वी हैव very basically understood the financial statements. What are financial statements? One is income statement, the other one is statement of financial position. So let's move on to our illustration or walkthrough 8.1. Here small tip has been given. The word revenue is used instead of sales in a trial balance and in an income statement. इन्होंने कहा है कि हमने यहाँ पे रेवेन्यू का वर्ड इस्तेमाल किया है, और सेल्स रेवेन्यू भी इसे कहा जाता है, सेल्स भी कहा जाता है, रेवेन्यू भी कहा जा सकता है। तो इन टर्म्स से आप ऑलरेडी आई होप कि आप लोग वाकिफ हैं। ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस गिवन है। नेम ऑफ द कंपनी, इफ़ इट इज़ इंडिविजुअल, सो नेम ऑफ द individual is written, he is a sole proprietor, Sameer. Name of the statement, trial balance at 31st May 2000 whatsoever. So जो ट्रायल बैलेंस है, बैलेंस शीट है या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन जिसको कहते हैं, ट्रायल बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन, जो आइटम है, ये दो चीज़ें जो हैं इसके ऊपर एक स्पेसिफिक डेट लिखी जाती है, एज ऑन या एज एट 31st में स्पेसिफिक ईयर। तो ये आपके सामने एक ट्रायल बैलेंस है। इसको एनालाइज करना इस वजह से ज़रूरी है कि हम इनकम स्टेटमेंट को फ़र्ज़ करें प्रिपेयर करने जा रहे हैं। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड what these items are. As you know, you have gone through the complete accounting cycle. You prepare journal entries and ledgers, and finally you get the trial balance. So I hope you are already aware with these items. So look at this trial balance, और इस trial balance में आप analyze करें, you may see that this is a revenue. This comes to the trading section and there is sales return. It will be subtracted from the revenue if you are making the statement form. This is purchases and this is purchase return. This is carriage inward. This is opening inventory. Okay. Now if we are converting it into a trading account, अगर हम अकाउंट फॉर्म में जाना चाह रहे हैं, हम इसको अकाउंट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो लेट्स टेक द आइटम, फॉर एग्जांपल वी टेक द आइटम ऑफ रेवेन्यू। रेवेन्यू को आपके सामने नज़र आ रहा है क्रेडिट बैलेंस। सो ट्रायल बैलेंस के जो आइटम्स हैं इसमें हम जो है वो क्लोजिंग प्रोसेस को जो है इस वक्त अप्लाई करते हैं। आप देखना चाह रहे हैं कि डिटेल देखना चाह रहे हैं तो आप जो है वो मेरे अकाउंटिंग साइकिल की वीडियोस को देख सकते हैं। उसके अंदर अकाउंटिंग साइकिल का जो फर्स्ट वीडियो है उसके अंदर अकाउंटिंग साइकिल का जो मैप बनाया हुआ है उसमें एक क्लोजिंग प्रोसेस आता है। देखें, you get revenue has a credit balance. Okay, so here is the account form. You may take it as in this way, like this is a trading account, so account should have a line drawn just like that. So it is a part of double entry system, so I am making a line drawn here for your sake of understanding. So this is a ledger account, and with the help of the trial balance you are closing the nominal accounts. आप जो है वो nominal accounts को, आर्जी accounts को, revenue and expenses accounts को close कर देते हैं। ठीक है, so how you are closing these? तो इनकम स्टेटमेंट के दो सेक्शंस हैं, ट्रेडिंग सेक्शन और P&L सेक्शन। ऊपर वाले को ट्रेडिंग अकाउंट कहते हैं और नीचे वाले को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं। तो इनकम स्टेटमेंट के अंदर जब ये लेजर फॉर्म में होता है, अकाउंटिंग डबल एंट्री सिस्टम के अंडर ये होता है, इनकम स्टेटमेंट जब होती है तो हम इस वक्त ये कहते हैं कि ट्रेडिंग अकाउंट को हमने क्रेडिट कर दिया और रेवेन्यू को डेबिट कर दिया। सो रेवेन्यू इज़ डेबिटेड and trading account is credited.
या और सिंपल वे में इनकम स्टेटमेंट इज़ क्रेडिटेड। तो जो आइटम ट्रायल बैलेंस के अंदर रेवेन्यूज़ एंड एक्सपेंसेस में से लाइक रेवेन्यू है, रेवेन्यू का अगर क्रेडिट बैलेंस है, एज वी नो दैट रेवेन्यू ऑलवेज हैज़ क्रेडिट बैलेंस, तो जब हम उसको क्लोज करने लगे हैं, उसको ख़त्म करने लगे हैं, नॉमिनल अकाउंट्स को क्लोज कर दिया जाता है, तो क्लोज किस में करना है हमने, इनकम स्टेटमेंट या इनकम समरी में उसको क्लोज करना है। तो डबल एंट्री के हिसाब से उसको ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्लोज करना है। तो अब हम सिंपली कह देंगे कि रेवेन्यू जो है वो डेबिट हो गया और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट जो है वो क्रेडिट हो गई 95,700 से। अच्छा, अब इसमें यह है कि क्लोज़ करने की क्या कंडीशन होती है। क्लोज़ करने की कंडीशन ये होती है कि आप जो है जिस अकाउंट का पर्सनल बैलेंस क्रेडिट होता है उसको आप उल्टा देते हैं, ऑपोजिट कर देते हैं। लाइक देखें कि आप इस वक्त देख सकते हैं कि रेवेन्यू का ट्रायल बैलेंस के अंदर क्रेडिट बैलेंस है, तो हमने अगर रेवेन्यू को क्लोज़ करना है तो हम उसके बैलेंस को उल्टा देंगे, यानी कि रेवेन्यू को डेबिट कर देंगे और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। ये आपके सामने है। मैंने इनकम स्टेटमेंट इसको कह लें या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कह लें, कोई एक नाम यूज़ कर लें आप इसको यहाँ पे, लेकिन मेरे हिसाब से इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग a ledger form you should prefer the word of the profit and loss account। सो ये आप देख सकते हैं इसके मुताबिक ही एंट्री हुई है। सो रेवेन्यूज़ आर डेबिटेड एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इज़ क्रेडिट। ये आपके सामने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो गया है। तो आपके सामने मैंने एक रेवेन्यू की एग्जांपल डिस्कस कर दी है। इसी तरह मैं आपके सामने इधर डेबिट साइड वाली भी एक एग्जांपल डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल आपके सामने ओपनिंग इन्वेंट्री 7100 नज़र आ रही है। तो इधर देखें ट्रायल बैलेंस में जाकर ओपनिंग इन्वेंट्री जो है 7100 आपको ये नज़र आ रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट बैलेंस है। अब ओपनिंग इन्वेंट्री का डेबिट बैलेंस 7100 है, तो अब हम इसको अगर क्लोज करना चाहें तो हम इसके बैलेंस को उल्टा देंगे। तो जब हम इसको उल्टाएंगे तो क्या होगा कि ये इसको क्रेडिट हो जाना चाहिए। ठीक है, सो ओपनिंग इन्वेंट्री जो है वो इन्वेंटरी क्रेडिट हो जाएगी। इन्वेंट्री जब क्रेडिट होगी तो इसको इन्वेंट्री को क्रेडिट किसने किया है, इसको P&L ने किया है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट ने। इसको आप इनकम स्टेटमेंट भी कह सकते हैं, लेकिन मैं आपको टेक्निकली बेटर टर्म बता रहा हूँ, विच इज़ P&L। तो कितनी अमाउंट से हो गया जी, ये 7100 से P&L डेबिट हो गया और इन्वेंट्री जो है ओपनिंग इन्वेंट्री वो 7100 से क्रेडिट हो गई। ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं, क्लोजिंग का जो प्रोसेस होता है, याद रहे कि ये जर्नल एंट्री की शक्ल में होता है, जर्नल में होता है। जर्नल इस वक्त मैं आपके सामने ये इधर साइड पे दिखा रहा हूँ, और ऑब्वियसली एज यू नो इन एन अकाउंटिंग साइकिल जर्नल से आप मूव करके लेजर पे आ जाते हैं। तो ये सामने आपके ये लेजर बना हुआ है। तो ओपनिंग इन्वेंट्री जो थी उसका ओरिजिनल बैलेंस डेबिट था, तो क्लोजिंग के दौरान इसको हमने क्रेडिट कर दिया है और P&L ने इसको क्लोज़ किया है। P&L एंड के अंदर ये क्लोज़ हुआ है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर ये क्लोज़ हुआ है, तो इसका अपना बैलेंस उलट गया है। ये मैंने आपके सामने दो एग्जांपल डिस्कस कर दी हैं, रेवेन्यू की और ओपनिंग इन्वेंट्री की। इसी तरीके से परचेजेस भी हैं, तो ये आप बाकी चीज़ें इसको खुद अंडरस्टैंड कर सकते हैं। नॉर्मली रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न माइनस कर दिया जाता है। परचेजेस ऑब्वियसली उसका डेबिट बैलेंस है, तो परचेजेस जब क्लोज होंगी तो उसकी एंट्री भी यही होगी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, परचेजेस क्रेडिट। लेकिन परचेजेस के अंदर कुछ चीज़ें एडजस्टमेंट करनी होती हैं। परचेज रिटर्न परचेजेस में से माइनस करना होता है। गुड्स फॉर ऑन यूज़ जो है वो भी इसमें से माइनस करना होता है, क्योंकि पर्सनल यूज़ के लिए ये रूटीन आइटम नहीं है। और कैरेज इनवर्ड इसमें ऐड करना होता है। ये चीज़ें ऐड करने के बाद परचेजेस का ओवरऑल वैल्यू 65,700 यूँ समझ लें कि हम उसको जो है वो क्रेडिट कर देते हैं। और जस्ट लाइक दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट और परचेजेस क्रेडिट, तो ये 72,800 से आ जाता है। क्लोजिंग इन्वेंट्री को जो है आपको पता ही है कि उसमें से क्लोजिंग इन्वेंट्री का सो क्लोजिंग इन्वेंटरी जो है ये कॉम्प्लेक्स जो है एडजस्टिंग एंट्री होती है। इसको फिर मैं किसी वक्त किसी वीडियो में डिस्कस करूँगा, लेकिन फ़िलहाल आपका चूँकि बहुत बेसिक लेवल का कोर्स है, तो इसको आपके ऑथर ने जिस तरीके से जो है आपके ओ लेवल की टेक्स्ट बुक है
क्लोजिंग इन्वेंट्री को यहीं पे माइनस कर दिया है, तो मैं भी उसी चीज़ को फॉलो करते हुए कॉस्ट ऑफ सेल्स जो हासिल हो रही है वो इधर से कैलकुलेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे आ जाती है और हमारा टोटल सेल्स रेवेन्यू है 94,700। कॉस्ट ऑफ सेल्स यहाँ पे कैलकुलेट हो चुकी है 65,200। ये एक लेजर अकाउंट आपके सामने बन गया है और इस लेजर अकाउंट की जो है वो आपके सामने ग्रॉस प्रॉफिट, credit side is greater than the debit side, so credit side is this balance of this account is credit balance, which is 29,500. Debit side is 29,500 less than, shorter than the credit side. Debit side is 29,500 less than or shorter than the credit side. तो हमने इसको इधर डेबिट साइड पे लिख दिया है और जिस वक्त हम इसको आगे लेके जाएंगे P&L में लेके जाएंगे तो हम 29,500, जैसे कि हमें पता है कि क्रेडिट बैलेंस है, उसको क्रेडिट बैलेंस में ले जाएंगे। So, in the previous few minutes, we had discussed on the previous page, we have understood the account form, ledger account form of the profit and loss account, trading section of the profit and loss account. तो इसको ओवरऑल को, चूँकि इसका पूरा नाम ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी है, हम इसको रफली अकाउंटेंट्स जो है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी कह देते हैं। पूरा नाम अगर आप कहें तो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है और इसका अगर मुख्तसर नाम कहना चाहें तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है। और इसको इनकम स्टेटमेंट भी कहा जा सकता है। इफ़ यू आर आस्क्ड टू प्रिपेयर द इनकम स्टेटमेंट, तो आपने इसको इनकम स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर देना है। और इसका ये इस वक्त ट्रेडिंग सेक्शन है, इनकम स्टेटमेंट का ट्रेडिंग सेक्शन आपको नज़र आ रहा है। इसमें देखें, इसके 3 पार्ट्स हैं। याद रहे कि इसमें डेबिट एंड क्रेडिट नहीं है, इसमें प्लस माइनस है सिर्फ। तो फाइनल आउटर कॉलम के अंदर जो है वो आपको, एक्चुअली आउटर कॉलम इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इस आउटर कॉलम के अंदर जो है वो आपको असल कैलकुलेशंस, मेन कैलकुलेशंस, फाइनल कैलकुलेशंस जो है वो आउटर कॉलम के अंदर नज़र आ रही है। ठीक है, आउटर कॉलम के अंदर सबसे पहले हमने क्या लिखा, रेवेन्यूज़ मिडिल कॉलम में लिखा और उसमें से सेल्स रेवेन्यू में से सेल्स रिटर्न माइनस करके आउटर कॉलम के अंदर हम लेंगे। ये वही चीज़ है जो कि आपने अकाउंट फॉर्म के अंदर बनाई है। इस वक्त आप क्या बना रहे हैं, स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर बना रहे हैं। इस वक्त आप ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या इनकम स्टेटमेंट को स्टेटमेंट फॉर्म के अंदर बना रहे हैं। तो ये आपने उधर अकाउंट फॉर्म में देखा। उसके बाद फिर आपने कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन शुरू की। ठीक है, ये आप मैंने एक जो है आपके साथ इस चैप्टर में से एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज नंबर 4 डिस्कस की है, उस वीडियो के अंदर आप डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये मैं इस वक्त आपके साथ इलस्ट्रेशन डिस्कस कर रहा हूँ। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन इस वक्त हो रही है। तो कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन के अंदर जो है ये हमने कॉलन लगा दिया। कॉलन मीन्स कि आगे जो कैलकुलेशन आ रही है वो कॉस्ट ऑफ सेल्स की आ रही है। कॉस्ट ऑफ सेल्स की कॉलन का मतलब ये है कि यहाँ से इसकी कैलकुलेशन स्टार्ट हो रही है। ओपनिंग इन्वेंट्री के अंदर कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड को ऐड करेंगे। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड कैसे कैलकुलेट होती है, जो है ओपनिंग इन्वेंट्री लेस परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद गुड्स फॉर ऑन यूज़ माइनस करने के बाद कैरेज इनवर्ड ऐड कर दिया जाए। कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज्ड के एक्चुअली 3 आइटम्स हैं। ओपनिंग इन्वेंट्री, उसमें से परचेज रिटर्न अलाउंसेज एंड परचेज डिस्काउंट माइनस कर दिया जाए। यहाँ पे डिस्काउंट नहीं है, हमने लिहाजा नहीं किया। ठीक है, तो ओपनिंग इन्वेंट्री, परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस और परचेज डिस्काउंट एंड कैरेज इनवर्ड्स को ऐड किया जाता है। परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस को और परचेज डिस्काउंट को माइनस किया जाता है और कैरेज इनवर्ड को ऐड किया जाता है। ठीक है जी, तो ये आपकी हो गई जी। तो अगेन आई एम रिपीटिंग कि कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज के अंदर, यानी कि सिंपल परचेजेस के अंदर एक परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस, परचेज डिस्काउंट और कैरेज इनवर्ड होते हैं। अच्छा, अब इसमें जब आप ओपनिंग इन्वेंट्री आपने ऐड कर दी और क्लोजिंग इन्वेंट्री माइनस कर दी, तो दिस गिव्स राइज टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स। सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल्स एंड इट इज़ बीइंग कनेक्टेड विद दिस कॉलन. This is colon written and here is its answer. So you have put the heading cost of sales, given colon to it, and this is the final answer. Inner column के अंदर हम क्या करते हैं, ये हम कैलकुलेशन करते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज की, या सिंपल परचेजेस उसको कह सकते हैं। इट कम्स आउट टू बी 65,700। परचेजेस के अंदर परचेज रिटर्न एंड अलाउंसेस को माइनस किया, गुड्स फॉर ऑन यूज़ को माइनस किया, कैरेज इनवर्ड को ऐड किया। सो हमारी कॉस्ट ऑफ गुड्स परचेज आ गई 65,700।
इसके अंदर ओपनिंग इन्वेंट्री को ऐड किया और क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस किया. दिस गिव्स राइज टू द कॉस्ट ऑफ सेल्स फॉर आवर ट्रेडिंग बिजनेस. एंड दिस इज़ द फाइनल कॉलम. फाइनल कॉलम के अंदर जो है, लास्ट कॉलम के अंदर सेल्स रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ सेल्स, दिस इज़ ग्रॉस प्रॉफिट. सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ ऑल अबाउट आवर trading section of the income statement, or you may say trading section of the trading and profit and loss account. कुछ स्टूडेंट्स इसमें उनके जहन में ये सवाल पैदा होता है. ओवर द ईयर्स आई हैव heard from the students that does it mean that if we name trading and profit and loss account, we prepare only the ledger form of the statement, and when we prepare the statement form we give the name income statement. इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज़ जब हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके अंदर आप देख सकते हैं लफ्ज़ स्टेटमेंट आ गया. तो क्या हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में बनाएंगे? याद रहे इसका जवाब ये है कि ये दोनों जगह ये लफ्ज़ इस्तेमाल होता है. ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और इनकम स्टेटमेंट, ये दोनों टर्म्स सिनोनिमसली यूज़ होती हैं. whether you use the term of the income statement or you use the term trading and profit and loss account, ये दोनों चीज़ें अकाउंट फॉर्म में भी हो सकती हैं, स्टेटमेंट फॉर्म में भी हो सकती हैं. मिसाल के तौर पे आप ये देख सकते हैं कि इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज़ इन्होंने इस्तेमाल किया और इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेजर अकाउंट बना दिया. ठीक है. और फिर इनकम स्टेटमेंट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और फिर ये स्टेटमेंट फॉर्म में बना दिया. तो लफ्ज़ स्टेटमेंट से आपको इसमें घबराने की ज़रूरत नहीं है. तो इनकम स्टेटमेंट का वर्ड हो या ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का वर्ड हो, दोनों सूरतों में लेजर अकाउंट फॉर्म भी यूज़ हो सकती है, स्टेटमेंट फॉर्म भी यूज़ हो सकती है.